Hello, my dear students. How are you? Fine? Okay. Let us discuss today about the scientific notation. Scientific notation is not a part of chemistry, it is a practical part to calculate some quantities. Actually, scientific notation, significant figures, round off all these topics, accuracy and precision, they are already we have to also study in physics in detail. But I will discuss here the topic which are useful so far as chemistry is concerned. Okay. So let us discuss one by one. Remember one thing, my dear students, scientific notation is not a question. It is a one practical thing to learn. Another thing, after this scientific notation, we will discuss about the significant figures, precision, accuracy, everything. They are never asked in exam as a question. It is only for understanding, for practical application in practicals. Okay. So see, first scientific notations, and that is useful to handle large number. See, in atomic structure, the mass of electron, mass of proton. In 10th standard, you studied Avogadro number. All these numbers are extremely big. Mass of one hydrogen atom, any atom. So see here, if you are asked to write Avogadro number, then Avogadro number is a 602 and another 2 followed by 20 zeros. Okay, so every time to write numbers like this is a funny thing. Another thing, practically decided mass of hydrogen is say 0 and so much zeros and at last 166 digit, that much gram. Another examples, there are also this type of funny numbers like Planck's constant, speed of light, you know very well. In 9th standard there was one chapter light. In that chapter, speed of light written, and then charge of particle, negative charge, positive charge on proton. Okay, so how to express this number in scientific notation in place of this type of long notation? And when we write this type of long numbers, then it is very difficult. It is very difficult to add, subtract, divide. How can you multiply, add and subtract this type of numbers? Listen my friends, these numbers you don't have to prepare. Just I am explaining you scientific notation. So all these numbers in scientific notation, जो ये पैराग्राफ है उसमें मैंने ये लिखा है कि ये ऐसे नंबर अगर होंगे, ठीक है, तो हम एडिशन नहीं कर सकते, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन. सो difficult to do the simple operations with these numbers. So these numbers are converted into this type of scientific notation, n multiplied by 10 raised to n. उसमें ये जो कैपिटल n है, कापी बुक में कैपिटल A लिखा होता है, कहीं पे x लिखा होता है, लेकिन मतलब सेम रहता है. तो ये n जो है वो 1 या ग्रेटर देन 1 होता है, एंड लेस देन 10 मतलब 9.9999 और 1.000 मतलब जो भी डिजिट आए. तो इसका मतलब कि ये n जो है वो 1 पॉइंट समथिंग से ग्रेटर और इक्वल और 9.99 से स्मॉल, ये कभी 10 नहीं होता है. अब बात करते हैं 10 के पावर की. तो देखिए 10 का पावर जो है एक्सपोनेंट इसको बोलते हैं, वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है. ठीक है, जैसे आप इलेक्ट्रॉन का मास लेते हो तो 9.1 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻31 किलोग्राम. ठीक है, एवोगेड्रो नंबर लिखते हैं तो 6.022 और 23 कहीं पे लिखा होता है, मल्टीप्लाइड बाई 10⁻23. सो
these type of numbers written as, जैसे पहला एवोगेड्रो नंबर था, तो एवोगेड्रो नंबर साइंटिफिक नोटेशन में ऐसे लिखा जाता है 6.022 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻23, ठीक है। और ये जो है ये ऐसा लिखा जाता है 1.66 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻24, ठीक है। अब ये साइंटिफिक नोटेशन लिखने के लिए हमें LIRD रूल फॉलो करना है। उसमें क्या करना है देखिए, या तो आपको ये डेसिमल पॉइंट ये जो है उसको राइट से लेफ्ट मूव करना होता है, या तो डेसिमल, यहाँ पे ये डेसिमल पॉइंट है उसको लेफ्ट टू राइट मूव करना होता है, ठीक है। कब तक मूव करना है कि आपको डेसिमल पॉइंट से पहले एक डिजिट रखनी है, एक डिजिट, ठीक है। देखिए मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिखाऊंगा, ये मैंने बनाया है, आप ज़रा कंपेयर करके देख लीजिएगा कि ये कैसे एवोगेड्रो नंबर को मैंने साइंटिफिक नोटेशन में लिखा है, कैसे ये एक हाइड्रोजन के मास को भी मैंने साइंटिफिक नोटेशन में लिखा है, ठीक है। अब व्हाट इज़ द LIRD रूल? इफ़ यू move decimal point left side, then 10th power increases according to our jump. If we move decimal point left side, तो पावर को इंक्रीज करना है। इफ वी मूव डेसिमल पॉइंट राइट साइड, देन 10th पावर डिक्रीजेस बाय 1। और जितना आप जंप लगाते हो उतना, ये कोई नई बात नहीं है, मैथमेटिक्स में आप पढ़ चुके हो, नहीं पढ़े हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए इसको, ये रूल घर का बनाया हुआ है, कोई साइंटिफिक नहीं है, ये मैंने ऐसे ही लिखा है LIRD, ठीक है। LIRD कोई बुक में नहीं देखने को मिलेगा, ये मैंने बनाया है कि LIRD मतलब लेफ्ट साइड मूव करोगे तो इंक्रीज होगा 10th का पावर, राइट साइड मूव करोगे तो डिक्रीज होगा, LIRD। तो मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं, चलिए हमारे पास ये डिजिट है, उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखिए। तो मैं इसको लेफ्ट साइड 2 डेसिमल पॉइंट जंप लगाऊंगा। साइंटिफिक नोटेशन में डेसिमल से पहले लेफ्ट साइड ऑफ द डेसिमल आई वांट ओनली 1 डिजिट, ठीक है। तो ये होगा 2.32508। अब कितना मैंने जंप लगाया? 2 डिजिट जंप लगाया, ये 2 और 3, ठीक है। और ये 2 3 के बीच में मैंने डेसिमल पॉइंट डाल दिया, 2 3 और फिर डेसिमल पॉइंट, तो कितना जंप, ये डेसिमल पॉइंट, उसके बाद 2, इसके बाद ये 3 यहाँ पे डाला, तो लेफ्ट साइड इंक्रीजेस 10th का पावर, आई जम्प्ड 2 डिजिट, देन 10th पावर इज 2। चलिए इसको देखिए, बहुत इजी कंसेप्ट है। यहाँ पे मैं इस डेसिमल पॉइंट को लेके 4 डिजिट जंप लगाता हूँ, LIRD, राइट साइड डिक्रीजेस। सो कितनी डिजिट जंप लगाया? 1 2 3 और ये 4, और 1 और 6 के बीच में मैंने डेसिमल पॉइंट रख दिया, तो 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻4, यहाँ पे डिक्रीज होगा तो -4, यहाँ पे इंक्रीज लिखेंगे तो +2, ठीक है। Once you convert any digit in a scientific notation, my friends, then you have to do the simple operations like multiplication and division. देखिए ये लेक्चर में मैं बोर्ड पे भी ले सकता था, लेकिन उसमें कैलकुलेशन बहुत है और टाइम वेस्टिंग है, और वैसे भी आपको इजीली ये समझ में आ जाएगा, बहुत ही ईजी है, पूरे ध्यान से पूरा लेक्चर देखना तो पूरा समझ में आ जाएगा। चलिए मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, अब साइंटिफिक नोटेशन वाली ये जो 2 डिवीज़न है, सॉरी ये 2 डिजिट जो है उसका मुझे मल्टीप्लिकेशन करना है। तो पहले ये n ले लो, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, अब जो है वो पावर को अलग कर लो, ये 10th का पावर 5 और ये 10th का पावर 8, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, उस मल्टीप्लिकेशन में पावर इज एडेड,
तो फाइनल आंसर मुझे ये आप कैलकुलेटर से चेक कर लेना, ये 38.56 10⁻13 8 + 5, ठीक है। ये साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है, दिस इज नॉट इन अ साइंटिफिक नोटेशन। तो क्या करना होगा, मुझे ये डेसिमल पॉइंट को एक डिजिट आगे लेना होगा। कौन से साइड? लेफ्ट साइड। तो ये 13 है, उसमें +1 होगा, तो ये होगा 14। सो साइंटिफिक नोटेशन में आएगा 3.856 × 10⁻14। देखिए अब जो लंबी डिजिट है उसको भी हम इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ साइंटिफिक नोटेशन। चलिए एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। चलिए इस 2 डिजिट को आप मल्टीप्लाई करके दिखाइए। कैसे करोगे मल्टीप्लाई? ये दोनों अलग कर लो पहले। 9.8 2.5 मल्टीप्लाई, पावर जो है मल्टीप्लिकेशन में ऐड होगा तो -2 प्लस -6, तो ये होगा -8, और इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो आएगा 24.50, ठीक है। ये साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है, तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करो। तो फिर से मुझे यहाँ पे डेसिमल पॉइंट जंप करना पड़ेगा। आई हैव टू जंप 1 डिजिट। 1 डिजिट मीन्स लेफ्ट साइड मीन्स LI इंक्रीजेस, सो -8 + 1, सो यहाँ आएगा -7, ठीक है। इंक्रीज बाय 1, एक डिजिट आप लेफ्ट जाते हो तो +1, 2 डिजिट जाते हो तो +2, 3 डिजिट जाते हो तो +3। उसी तरह राइट साइड जाते हो तो डिक्रीजेस, राइट साइड 1 डिजिट -1, 2 -2, 3 -3, लाइक दैट। अब हम डिवीजन करते हैं इसमें। देखिए अब कितना इजी हो गया साइंटिफिक नोटेशन से। ये 2.7 और ये 5.5, पहले इसको डिवाइड कर लो, ये मैंने सेपरेट लिखा, उसका आएगा 0.4909, ठीक है। अब डिवीज़न में जो एक्सपोनेंट का सब्ट्रैक्शन होगा तो -3 -4, ठीक है। -3 में से 4 माइनस करना है, -3 -4। मल्टीप्लिकेशन में एडिशन होगा, डिवीज़न में सब्ट्रैक्शन होगा, तो -3 -4 होगा -7। तो अब तो ये साइंटिफिक नोटेशन नहीं है, दिस इज नॉट अ साइंटिफिक नोटेशन। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एक डिजिट जो है हम किस साइड ले जाएंगे? राइट साइड। राइट साइड मीन्स डिक्रीजेस, लेफ्ट साइड इंक्रीजेस, LIRD, लेफ्ट इंक्रीजेस, राइट डिक्रीजेस। सो -7 और एक डिक्रीज -1, तो होगा -8, और ये हो गया साइंटिफिक नोटेशन। डेसिमल से पहले मुझे एक डिजिट चाहिए साइंटिफिक नोटेशन में, याद रखना। डेसिमल से पहले मुझे एक डिजिट चाहिए बस, चाहे आप लेफ्ट जाओ या राइट जाओ, इट इज डिपेंड अपॉन योर आंसर्स, ओके। ये तो बात हुई एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन की। Let us discuss about the addition and subtraction with the help of scientific notation. So keep in mind one thing, when you perform addition and subtraction with the digits having scientific notation or not, but see here this is also scientific notation, okay, but here you have to keep in mind that in addition and subtraction the 10th power must be same in both digits, otherwise addition and subtraction not possible. क्लियर है ना? ठीक है, चलिए मैं इस बात को एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ, कोई डिफिकल्ट नहीं है, ध्यान से देखिए। चलिए ये पहला एग्जांपल, ये एक डिजिट है 6.65 10⁻4, ये +8.95 10⁻3, या तो दोनों ये पावर 3 होने चाहिए या तो दोनों पावर 4 होने चाहिए। एज यू लाइक, आंसर विल रिमेन सेम, डोंट वरी। आइदर कन्वर्ट बोथ पावर 4 और कन्वर्ट बोथ पावर ऑफ 10 into 3। सो लेट अस कन्वर्ट बोथ पावर into 4। तो ये तो 4 है ही,
अब इसको अगर मुझे 4 करना है तो एक प्लस करना पड़ेगा, तो LIRD लेफ्ट इंक्रीजेस। ओके, तो ये डेसिमल पॉइंट को यहाँ पे, चाहे वो नोटेशन साइंटिफिक रहे या ना रहे, उसका आपको कोई टेंशन लेना नहीं है, वो लास्ट में फाइनल आंसर साइंटिफिक नोटेशन में आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पे एक डिजिट, तो ये हो गया 0.895, पावर एक बढ़ गया 10⁻⁴। ठीक है, अब इजी हो गया, ये 10⁻⁴ आप कॉमन निकाल लो, ये यहाँ पे निकाल लिया। अब ये दोनों जो डिजिट है 6.65 एंड 0.895 उसको ऐड कर लो, ये ऐड किया तो ये आएगा 7.545 10⁻⁴। तो ये साइंटिफिक नोटेशन में ही है, इसको कोई चेंज करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, यू डोंट हैव टू चेंज बिकॉज ऑलरेडी द आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। सी एग्जाम्पल नंबर 2, वॉच इट केयरफुली, and that is the 2.5 multiplied by 10⁻⁻² minus 4.8 multiplied by 10⁻⁻3। ये सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन है, वो पहले वाला जो था वो एडिशन था। ठीक है, या तो दोनों का पावर -2 होना चाहिए या दोनों का पावर -3 होना चाहिए। चलिए हम -2 में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो दिस इज 2.5 multiplied by 10⁻² and minus, and here I have to convert it into -2, so I have to -3 + 1, so increase by 1, तो इसको मुझे ले जाना है लेफ्ट साइड, लेफ्ट इंक्रीजेस, तो 0.48, तो ये -3 + 1 इंक्रीज हो जाएगा, तो -3 + 1 ये होगा -2। नाउ सी बोथ पावर बिकम सेम, -2 -2। ठीक है, आपको कोई एक्स्ट्रा प्रैक्टिस नहीं करनी है, मैंने जो एग्जाम्पल दिए हैं उसको सोचना, सीधा समझना, उसको एब्सॉर्ब करना कि नहीं ऐसा ही होगा, तो बाद में आप दूसरी प्रैक्टिस कर सकते हो। पहले मेरे एग्जाम्पल को समझने की पूरी कोशिश करना, बाहर मत निकलना इससे। एक्स्ट्रा प्रैक्टिस की ज़रूरत भी नहीं है। जब भी हम 12th में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है, सॉल्यूशंस के प्रॉब्लम सॉल्यूशन करेंगे, यहाँ पे 11th में थर्मोडाइनेमिक्स है, इक्विलिब्रियम है, सॉलिड स्टेट है, सॉलिड स्टेट 12th में, अभी गैसियस एंड लिक्विड स्टेट है 11th में। तो ये सब में जब न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे तो ये सब ऑपरेशन में ये आपको पता होना चाहिए कि मुझे पावर फाइनली मुझे जो आंसर है साइंटिफिक नोटेशन में लेना है। तो यहाँ पे ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, ये 10⁻² कॉमन निकल गया, तो ये सब्ट्रैक्शन आपका आएगा 2.02 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻²। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि फाइनल आंसर इज ऑलरेडी इन साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, चलिए अब बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरह चलते हैं। और एक बात ध्यान में रखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, कि सिग्निफिकेंट फिगर्स का जो रूल है वो कभी एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता है। उस रूल का यूज़ करके आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स बतानी है। हाउ मेनी आर सिग्निफिकेंट फिगर्स प्रेजेंट हियर, तो वेयर दिस सिग्निफिकेंट फिगर्स आर यूजफुल। ओके, तो उसके पहले ये सब चीज़ें साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स में यूज़ आती है। आप लैब में जब एक्सपेरिमेंट करते हो, केमिस्ट्री लैब में, फिजिक्स लैब में, तो आपका जो रीडिंग है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स एज वेल एज योर लैब मैनर मीन्स हाउ एक्यूरेट इन योर एक्सपेरिमेंट यू आर एंड हाउ प्रिसाइज। तो मुझे आप लोगों ने एक सवाल किया था, किसने किया था अभी मुझे पता नहीं है, कि सर ये एक्यूरेसी और प्रिसीजन, मतलब कि ये एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन क्या है वो समझाइए। तो एक्यूरेसी जो है, हमें कोई भी एक्सपेरिमेंट हम साइंटिफिक करते हैं, हम किचन में रसोई बनाते हैं, तो उसमें हम एक्यूरेट नहीं है तो भी चलेगा थोड़ा, लेकिन जब आप साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करते हो और उस साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट में आप एक्यूरेट नहीं हो तो कभी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। ठीक है,
अभी जो ये लॉकडाउन का माहौल है, तो कितने साइंटिस्ट हमारे देश के फॉरेन के लेबोरेटरी में लगे हुए हैं, क्या बनाने के लिए? वैक्सीन बनाने के लिए। किसकी वैक्सीन बनानी है? कोविड-19 की। ठीक है, कितना एक्यूरेट एक्सपेरिमेंट चाहिए, कितना एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए हमें, तभी हम ये कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले सिग्निफिकेंट फिगर से पहले मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ कि मेज़रमेंट कैसे किया जाता है। मेज़रमेंट दो टाइप का होता है, एक तो एक्यूरेसी के साथ मेज़रमेंट, और जो स्टूडेंट मतलब कि आपके साथ जो पढ़ते हैं, लैब में जाते हैं, तो कोई एक्यूरेट काम करता है, कोई प्रिसाइज काम करता है, लेकिन एक्यूरेसी इज मोर इम्पोर्टेंट देन प्रिसीजन। तो आप बोलेंगे सर क्या एक्यूरेसी और प्रिसीजन, समझाइए ना क्या है ये। चलिए समझते हैं। तो एक्यूरेसी का मतलब है कि आप जो एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्व करते हो, आपका ऑब्जर्वेशन सही होना चाहिए, वेरी नियर टू द ट्रू वैल्यू। इसका मतलब कि आप परफेक्ट और एक्यूरेट। चलो मैं आपको बोलता हूँ कि अगर मैं आपको पूछूं कि मेरा बॉडी वेट क्या है, मुझे पता है सही। ठीक है, आप कुछ एक्सपेरिमेंट, कुछ अपना गेस करके आप बोलोगे कि सर आपका वेट जो है नियर अबाउट 60 किलोग्राम है। तो एक स्टूडेंट एक बोलता है कि नहीं सर 45 किलोग्राम। मैं दोबारा पूछता हूँ तो वही स्टूडेंट बोलता है कि सर 60 किलोग्राम कन्फर्म। दूसरा बोलता है कि नहीं 45 किलोग्राम कन्फर्म। ठीक है, तो अब मैं डिक्लेयर करता हूँ कि मेरा वेट 60 किलोग्राम ही है। तो जो स्टूडेंट बोलता है कि सर मुझे पता चल गया है मेरा ऑब्जर्वेशन से कि आप 60 किलोग्राम के ही हो, तो वो स्टूडेंट एक्यूरेट है। उसको प्रिसाइज अब कहने की ज़रूरत ही नहीं है कि एक्यूरेट में तो प्रिसीजन आ ही जाता है। अब दूसरा जो स्टूडेंट है वो प्रिसाइज है, वो एक ही डिजिट पे अड़ा रहता है 45, लेकिन वो राइट नहीं है, लेकिन प्रिसाइज है कि सर नहीं 45 से अप नहीं आपका वेट। ठीक है, तो वो प्रिसाइज है अपने डिसीजन पे कि नहीं यही है, लेकिन वो गलत है। जो पहला स्टूडेंट है वो 60 पे कंफर्म है, तो वो सही है क्योंकि वही ट्रू वैल्यू है। जब आपका ऑब्जर्वेशन ट्रू हो या वेरी नियर टू ट्रू हो, उसका मतलब है कि आप एक्यूरेट हो। आपका डिसीजन एक्यूरेट हो हर बार लेकिन ट्रू नहीं है, तो आप प्रिसाइज हो लेकिन एक्यूरेट नहीं हो। तो एक्यूरेट वाला प्रिसाइज हो सकता है लेकिन प्रिसाइज वाला एक्यूरेट नहीं हो सकता। तो ऑब्जर्वेशंस आर क्लोज, उसका ऑब्जर्वेशन तो प्रिसाइज है लेकिन नॉट एक्यूरेट। आप समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, फिर भी आप टेंशन मत लीजिए, मैं और एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। चलिए आपके क्लास में 3 स्टूडेंट्स हम सपोज कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ अभी मुझे नाम पता नहीं है, इसलिए मतलब कि इतना इंट्रोडक्शन नहीं हुआ है तो नाम नहीं लिख रहा हूँ, सीधा मैं बोल रहा हूँ कि ABC। 3 स्टूडेंट ले लो एक क्लास में से, और उसको एक एक्सपेरिमेंट दिया जाता है कि आप ये ऑब्जेक्ट का वेट मेज़र करो। और जो सर है लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करवाने वाले, उसको पता है कि इसका सही वेट क्या है। सही वेट है 2 ग्राम। आप ध्यान से सुनना, 3 स्टूडेंट क्लास के हमने एक्सपेरिमेंट के लिए चुने हैं। एक्सपेरिमेंट में हमने सीधा साधा लिया है, मुझे ये साइंस में इतना सीधा एक्सपेरिमेंट नहीं होता है, लेकिन आपको पता चलेगा कि एक्यूरेसी और प्रिसीजन क्या है जब आप एंटर होंगे लैब में, केमिस्ट्री की लैब में। तो पहला एक्सपेरिमेंट आएगा वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन। तो उसमें कोई स्टूडेंट एक्यूरेट होगा तो सर बोलेंगे क्या बढ़िया बात है, सच सही रीडिंग है आपके, चलिए कैलकुलेशन करिए। और दूसरा है एक ही रीडिंग बार बार लाएगा लेकिन सही नहीं होगा, तो वो प्रिसाइज है, लैब में क्या करना है उसको पता है, लेकिन वो एक्यूरेट नहीं है क्योंकि उसका वैल्यू सही नहीं आ रहा है। तो चलिए ये 3 बात, ये ट्रू वैल्यू स्टूडेंट्स को पता नहीं है, वरना तो ऐसा ही लिख देगा, एक्सपेरिमेंट ही नहीं करेगा। अब उसके पास कोई एनालिटिकल बैलेंस है या सिंपल बैलेंस है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल बैलेंस है, कोई भी हो, तो ए स्टूडेंट
सर के पास मेज़र करके जाता है कि सर मेरा जो पहली बार मैंने 2 बार करने की परमिशन है कि आप 2 बार वेट करके हमें बताइए। तो पहली बार वो वेट करके लाता है 1.95, 1.93। दूसरा जो बी स्टूडेंट है वो वेट करके लाता है 1.94, 2.05। और ये तीसरा जो स्टूडेंट है सी, वो वेट करके लाता है 2.01, 1.99। और हम एवरेज निकालते हैं तो ये 1.940, 1.995 और 2। एवरेज पे मत जाना, एवरेज तो कभी भी ट्रू वैल्यू के नियर भी आ सकती है, उसके बियॉन्ड भी जा सकती है। अगर स्टूडेंट प्रिसाइज भी नहीं है और एक्यूरेट भी नहीं है तो भी एवरेज उसका सही आ सकता है, लेकिन आपको देखना है उसका ऑब्जर्वेशन। चलिए मैं ए की बात करता हूँ। स्टूडेंट ए, अब सही वैल्यू है 2, बट वो दोनों बार 2 से बहुत दूर है। साइंस में तो सीधा मतलब थोड़ा रीडिंग उस या उधर उधर होता है तो ये नहीं चलता है, ठीक है। तो ये स्टूडेंट जो है वो नियर वैल्यू लेके आ रहा है 1.95, 1.93, मतलब कि ये प्रिसाइज कर रहा है। ये उसकी कुछ कमी रही होगी, उसको दिखाई नहीं देता होगा, या तो माइक्रो बैलेंस का जो डिजिट है उसमें कुछ उसको प्रॉब्लम होगा, ठीक है। कुछ उनका लिमिट की वजह से, उनके लिमिट की वजह से वो ये रीडिंग ला रहा है। तो दोनों रीडिंग नियर है, तो ये स्टूडेंट जो है प्रिसाइज है लेकिन एक्यूरेट नहीं है, ठीक है। ये स्टूडेंट क्या है, प्रिसाइज है लेकिन एक्यूरेट नहीं है। अब बी को देखिए, पहला रीडिंग ला रहा है 1.94, बोल रहा है कि सर ये ऑब्जेक्ट का वेट 1.94 ग्राम है। दूसरी बार आ रहा है तो 2 के ऊपर जा रहा है, 2.05 पे जा रहा है, ठीक है। अब ये एवरेज तो नियर आ रहा है लेकिन ये दोनों रीडिंग उसके बहुत ही क्लोज भी नहीं है, तो ये स्टूडेंट एक्यूरेट भी नहीं है और प्रिसाइज भी नहीं है, ठीक है। मैं पूछता हूँ कि मेरी बॉडी का वेट क्या है, ठीक है। तो वो बोलता है, पहली बार बोलता है सर 45 किलोग्राम, दूसरी बार बोलता है कि सर 65 किलोग्राम, तीसरी बार बोलता है कि 75 किलोग्राम। मतलब कि उसका दिमाग ही नहीं चलता है, बोलता है कभी ये कभी वो डिजिट, ठीक है। तो वो प्रिसाइज भी नहीं है, वो एक्यूरेट भी नहीं है, ठीक है। हम क्लास में पूछते हैं ना कि 12th में कितने परसेंटेज आएंगे, तो स्टार्टिंग में बोलते हैं सर 80 अप, 2-3 महीने चले जाते हैं उसके बाद बोलते हैं कि सर 65 अप। तो वो क्या है, एक्यूरेट भी नहीं है, प्रिसाइज भी नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि पहले दिन से बोलते हैं कि सर मैं 65 तक जा पाऊंगा, तो वो सही परसेंटेज क्या है, 100 आउट ऑफ 100। कुछ बोलते हैं कि सर मैं केमिस्ट्री में 100 आउट ऑफ 100 लाऊंगा, तो वो एक्यूरेट काम करेगा, ठीक है। तो साइंस में पढ़ने के लिए भी आप एक्यूरेट होने चाहिए, ठीक है। एक्यूरेट ना हो तो प्रिसाइज तो होनी चाहिए कि मैं इतना काम तो करूँगा ही। अब देखिए बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है सी। अब ये पहली वैल्यू भी ट्रू वैल्यू के बहुत नज़दीक है, दूसरी वैल्यू भी ट्रू वैल्यू के बहुत नज़दीक है, मतलब कि ये स्टूडेंट जो है वो प्रिसाइज भी है, एक्यूरेट भी है, ठीक है। एक्यूरेट प्रिसाइज होता ही है, लेकिन प्रिसाइज इज नॉट एक्यूरेट। अब जब आप बोलेंगे कि इसने एक्यूरेट काम किया है, तो उसका मतलब कि वो प्रिसाइज तो किया ही है, एक्यूरेट में प्रिसाइज आ जाता है लेकिन प्रिसाइज में एक्यूरेट नहीं आता। प्रिसाइज किया है मतलब कि एक्यूरेट नहीं है। अगर प्रिसाइज किया है और एक्यूरेट किया है तो फिर प्रिसाइज बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, एक्यूरेट में आ जाता है, ठीक है। सो प्रिसाइज मतलब वो एक्यूरेट नहीं है लेकिन उसकी वैल्यू क्लोज। समझ रहे हैं ना, बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है, ये कभी एग्जाम में नहीं आता है, ठीक है। सिर्फ आपको समझना है कि प्रिसीजन और एक्यूरेसी क्या होती है, ठीक है। चलिए अब हम एक बढ़िया कॉन्सेप्ट की तरह चलते हैं, और वो कॉन्सेप्ट है डिसाइड द सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर्स, सिग्निफिकेंट, उसके रूल्स है, ध्यान से पढ़िएगा, आपको इजीली समझ में आ जाएगा, बिल्कुल टेंशन रखने की ज़रूरत नहीं है। पहला रूल है
ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स, आपके सामने जितनी भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स आती है वो सिग्निफिकेंट है। देखिए ये 285 सिग्निफिकेंट फिगर 3, 0.25 सिग्निफिकेंट फिगर नॉन ज़ीरो डिजिट 2 ही है, तो 2, 2006, 4, ठीक है, ये नॉन ज़ीरो डिजिट है 2006। जितनी भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स है वो सिग्निफिकेंट है, ठीक है, देख लेना ध्यान से। दूसरा रूल वो भी ध्यान से पढ़ना, ज़ीरोस टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट, ये 5 जो है नॉन ज़ीरो डिजिट, 3 फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट, 5 फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट, 2 फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट, उसके लेफ्ट में जितने ज़ीरो आते हैं, ज़ीरोस लेफ्ट टू द फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट, ये राउंड की हुई फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट है, उसके लेफ्ट में जितने ज़ीरोस आते हैं, देखना ठीक से, दे आर नॉट सिग्निफिकेंट, नॉन सिग्निफिकेंट, वो आपको सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं गिनना है। देख लीजिए मैंने 4 एग्जाम्पल दिए, इसमें एक सिग्निफिकेंट है, ये नहीं गिनना है, ये इसको निकाल दो, ये 2 निकाल दो, ये 3 निकाल दो, ये 2 निकाल दो, तो यहाँ एक बच्चा, एक सिग्निफिकेंट, 3 एक डिजिट, एक सिग्निफिकेंट फिगर, ये 52 2 डिजिट, 2 सिग्निफिकेंट फिगर, 26 2 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। चलिए तीसरा, 5 रूल्स आर देयर। थर्ड रूल, zeros between two non-zero digits are significant, ठीक है, डेसिमल पॉइंट इग्नोर करना है इसमें। ये देखिए, फर्स्ट नॉन ज़ीरो, सेकंड नॉन ज़ीरो, फर्स्ट नॉन ज़ीरो, सेकंड नॉन ज़ीरो, यहाँ 2 5 2 4, यहाँ बीच में आता है एक ज़ीरो, यहाँ बीच में आते हैं 2 ज़ीरो या 3 ज़ीरो, जितने ज़ीरो, डेसिमल पॉइंट को इग्नोर करो यहाँ पे। तो ज़ीरोस बिटवीन टू नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, यहाँ 2.05 मतलब टोटल 3, 2.004 मतलब टोटल 4, ये ज़ीरोस काउंट करने, यहाँ बच्चे बहुत गलतियाँ करते रहते हैं, ये ज़ीरोस काउंट करने हैं, ठीक है। अब ये डिफरेंस यहाँ पे देख लिए, ये ज़ीरो काउंट नहीं करने हैं, तब सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 2 1 1 हो जाती है, ठीक है। चलिए 3 रूल आपका हो गया, बहुत बढ़िया। अब ज़ीरोस टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट्स आर सिग्निफिकेंट, जितने ज़ीरोस डेसिमल पॉइंट की राइट साइड आते हैं वो सब सिग्निफिकेंट है, ठीक है। बार बार पढ़ना, ठीक है, बार बार पढ़ना, ये रूल बहुत इफेक्टिवली मैंने लिखा है, बुक की तरह से पैराग्राफ में नहीं लिखा है, पूरा हाईलाइट करके समझाया है, ठीक से समझना। और आपको ऐसा लगे कि सर अगर मानो कि हमें थोड़ा इसमें हम वीक रह गए तो हमें कोई लॉस होगा, बिल्कुल लॉस नहीं होगा, ठीक है। केमिस्ट्री में हम इस डिजिट का यूज़ इतना नहीं करते हैं, ठीक है, फिर भी समझने की कोशिश करना। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पिछले 10 साल से मैंने JEE नीट पेपर जो सोल्व करवाए हैं उसमें मैंने पिछले 10 साल में एक भी क्वेश्चन ये सिग्निफिकेंट फिगर्स का नहीं देखा है, तो आप टेंशन मत लीजिए। लेकिन एज अ साइंस स्टूडेंट, एज अ एक्यूरेट साइंस स्टूडेंट, क्योंकि प्रिसाइज बोलूँगा तो एक्यूरेट नहीं आएगा, एक्यूरेट बोलूँगा तो प्रिसाइज ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक्यूरेट आर ऑलवेज प्रिसाइज बट प्रिसाइज आर नॉट एक्यूरेट, ठीक है। तो 500, ये 2 ज़ीरो देखिए, ये 2 ज़ीरो, ये 1 ज़ीरो, ये 4 ज़ीरो, ये 3 ज़ीरो, दे आर द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट यहाँ कंसीडर करना है आपको, यू हैव टू कंसीडर हियर डेसिमल पॉइंट्स माय फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये सब गिनना, ये 5 के बाद 2 ज़ीरो, टोटल सिग्निफिकेंट फिगर 3, ये 2 0 0 3, ये ज़ीरो लेफ्ट वाला, आगे वाला रूल इसमें होगा, ये नहीं गिनना है, ये आगे वाला रूल फॉलो करता है, ठीक है। ये जो मैंने क्रॉस लगाया है वो आगे वाले रूल को फॉलो करता है, रूल नंबर 3, या तो देख लेते हैं कौन सा रूल है, हाँ ये रूल नंबर 2, ये देखिए
इसमें नहीं हम कंसीडर करते हैं ये रूल, तो वो ज़ीरो उस रूल के हिसाब से निकल जाएंगे ना। तो आप देखिए यहाँ पे फिर से मैं दिखा दूँ, ये ज़ीरो नहीं गिनना है, ये नहीं गिनना है, ये नहीं, ये नहीं। तो राइट साइड जितने ज़ीरोज आते हैं तो उस हिसाब से देखिए यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे 0 0 2, ये 2 0 आगे है तो निकल जाएंगे। तो डेसिमल पॉइंट के राइट साइड तो ये की 0 है तो ये 2, ये 4 0 और एक 5, तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर 5, ये एक 2 और 3 0, टोटल सिग्निफिकेंट फिगर 4। इस रूल को भी ठीक से समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और ये इम्पोर्टेंट, यहाँ बहुत ही मिस्टेक करते हैं बच्चे। देखिए अगर आप 100 लिखते हो 100 तो उसका सिग्निफिकेंट फिगर 1 आता है, क्योंकि हम लोग इसको साइंटिफिक नोटेशन में ऐसे लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻²। तो हम ये पावर कभी नहीं गिनते सिग्निफिकेंट में, तो ये क्या है 1। अब इसको आप 1.0 लिखेंगे, ठीक है। साइंटिफिक नोटेशन में क्या है कि आपका कभी रीडिंग आता है 1.1, 1.2, 1.3, तो वहाँ लिखना जरूरी है कि मेरा तो कुछ 1.1 नहीं आ रहा है, तो मैं क्या लिखूँ 1.0, ठीक है। दूसरा स्टूडेंट है उसका आ रहा है 1.3, मतलब कि आपको प्रैक्टिकल में जो लैब इंस्ट्रक्टर बोले कि आपको रीडिंग लेना है डेसिमल पॉइंट के बाद 1 डिजिट, तो एक स्टूडेंट डेसिमल पॉइंट के बाद उसको डिजिट दिखाई देती है कि मेरा 1.5 आ रहा है, और उसके बाजू वाला स्टूडेंट बोलता है कि नहीं मेरा तो 1 ही आ रहा है, तो उसको 1 नहीं लिखना है, उसको लिखना है 1.0, क्योंकि डेसिमल पॉइंट के बाद की फिगर उसको नहीं आ रही, उसको 0 दिखाई दे रही, ठीक है। अगर आपको सर बोले कि आपको डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक आंसर ले जाना है, ठीक है, तो कोई स्टूडेंट बोलता है मेरा 1.21 आ रहा है, कोई बोलता है मेरा 1.05 आ रहा है, कोई बोलता है मेरा 1.11 आ रहा है, कोई बोलता है मेरा 1.52 आ रहा है, लेकिन कोई बोलता है कि मेरा तो 1 पॉइंट के बाद मुझे तो कुछ नहीं दिखाई देता, तो उसको क्या लिखना है 1 नहीं लिखना है, डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट उसकी 0 0 है, ठीक है। तो इस केस में ये रूल लागू होता है कि डेसिमल पॉइंट के राइट साइड जितने हैं वो सिग्निफिकेंट, अगर आप 1 लिखते हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे 1 है, ये 1.0 लिखते हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर 2 है, 1.00 लिखते हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर 3 है। ध्यान से देखना समझना इसको, यहाँ पे ऐसे 100 लिखते हो 100 तो सिग्निफिकेंट फिगर 1 है, अगर 100 के डेसिमल पॉइंट यहाँ पे रखते हो, ठीक है, तो ये नॉन 0 डिजिट है, उसके बाद के 2 0 है, तो ये सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, तो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर 3 आएगी। अगर आप ऐसे लिखते हो कि 100.0, तो ये जो है वो डेसिमल पॉइंट के राइट साइड वाला ये 0, ये 2 है वो डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड है, लेकिन उसके आगे नॉन 0 1 है, तो ये तीनों जो है सिग्निफिकेंट में आ जाएंगे, तो सिग्निफिकेंट टोटल होगा 4। तो ये जो है तीनों एग्जाम्पल, यहाँ जहाँ हम बहुत गलतियाँ करते हैं, तो ये आगे वाले रूल फॉलो करते हैं, यहाँ जो है 100, क्योंकि उसको साइंटिफिक नोटेशन में ऐसा लिखा जाता है, तो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर है 1। अगर 100 डॉट डेसिमल पॉइंट, सिर्फ डेसिमल पॉइंट डालते हो, डेसिमल पॉइंट के बाद कुछ नहीं डालते हो, तो उसका सिग्निफिकेंट फिगर है 3, और ऐसा लिखते हो तो ये सिग्निफिकेंट फिगर है 4। इतना ही समझ में आ जाए मैं जो डिजिट लिख रहा हूँ तो भी बहुत बढ़िया है। अब आप कोई चीज़ काउंट करते हो, मैं ऐसा बोलूँगा कि मेरे पास 2 बॉल पेन है, आई हैव 2 बॉल पेन, आई हैव 3 मोबाइल्स, आई हैव 20 eggs, I have 2 basketballs, okay, तो उसी केस में आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स पीछे ऑब्जेक्ट का नाम होना चाहिए। अगर सिर्फ आप 2 लिखते हो तो सिग्निफिकेंट फिगर आएगा क्या 1, सिर्फ आप 20 लिखते हो, ठीक है, तो ये राइट साइड नंबर जा रहा है, ये 0, ठीक है, तो आप लिख सकते हो 2 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻1, तो उसका सिग्निफिकेंट फिगर आएगा 1। जैसे ही आप उसके पीछे क्वांटिटी का नाम लिखते हो कि मेरे पास आई हैव 2 बॉल्स, आई हैव 20 eggs, आई हैव 2 बॉल पेन्स, आई हैव 3 बुक्स,
In all such cases you have to write the significant figure infinitive, क्योंकि आप इस 2 बोल्स को आप 2.00000000 लाइफ टाइम लिख सकते हो, कोई आपको मना करने वाला नहीं है। तो रूल है कि डेसिमल पॉइंट के बाद के सब जीरोस जो है वो सिग्निफिकेंट है। अब ये 21 है, 20 डेसिमल पॉइंट डाल के आप 20.0000 लिख सकते हो, तो ये इनफाइनाइट फिगर। लेकिन रूल को पढ़िए, काउंटिंग नंबर्स एंड ऑब्जेक्ट्स हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट नंबर्स। आप नंबर्स बोलते हो, आपका सर आपको बोले कि 1 to 100 बोलो, 1 2 3 4 5 6 7 8, वो सब के पास इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर है, क्योंकि आप डेसिमल पॉइंट रख के कितने भी जीरो रखो, यू आर फ्री टू राइट ऑल जीरोस, एंड इन सच केसेस सिग्निफिकेंट फिगर्स आर इनफाइनाइट। 5 रूल है, ठीक है, ठीक से समझिए। नहीं समझ में आता है तो मुझे फ़ोन करके पूछ लीजिए। चलिए अब सिग्निफिकेंट फिगर में एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में ध्यान में रखिए, सिग्निफिकेंट फिगर पहले गिननी आनी चाहिए कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट। चलिए पहले मैं सिग्निफिकेंट फिगर गिन लेता हूँ। इसमें है 4, इसमें है 2 और इसमें है 4, ठीक है। रूल पढ़ते रहना। अगर आपको सिग्निफिकेंट फिगर नहीं कैलकुलेट कर पाते हो तो भी एडिशन सब्ट्रैक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। चलिए मैं एक एडिशन करता हूँ। मेरे पास ये एग्जांपल है 12.11 प्लस 18.0 प्लस 1.012। अब मेरा आंसर आ रहा है 31.122। तो फाइनल आंसर आपको कैसे सेट करना है? फाइनल आंसर आपको सेट करना है कि डेसिमल पॉइंट के बाद उतनी ही डिजिट रखनी है जितनी डिजिट जो नंबर आप ऐड कर रहे हो उसमें मिनिमम डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट हो। तो इसमें क्या है कि डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहाँ 18 में 1 डिजिट है और यहाँ 1.012 में 3 डिजिट है। तो आपका फाइनल आंसर ये 1 डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट। तो मेरा आंसर था 31.122, तो मुझे उसको कन्वर्ट राउंड ऑफ करना है 31.1, ठीक है। ये दोनों निकाल दो, क्योंकि 18.0 में आफ्टर डेसिमल जिस डिजिट के पास मिनिमम डिजिट हो आफ्टर डेसिमल पॉइंट, उसी फॉर्म में आपका फाइनल आंसर लेना है। आंसर हैज डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट इज इक्वल टू द डिजिट हैविंग लोएस्ट डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट। तो लोएस्ट डिजिट 18.01 है, ठीक है। समझ में आ गया? बहुत ही ईजी कंसेप्ट है। चलिए अब मल्टीप्लिकेशन, ये सब्ट्रैक्शन अगर आप करेंगे कोई तो भी यही रूल फॉलो करना है आपको। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, तो कैसे करेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन? चलिए देखते हैं। तो जब भी आप मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करते हो तो पहले आपको उसी डिजिट का सिग्निफिकेंट फिगर्स कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। ये 2.5 है तो सिग्निफिकेंट फिगर 2 है, 1.25 है तो सिग्निफिकेंट फिगर 3 है। अगर आपको पता नहीं चलता है तो रूल पढ़ लीजिए। स्टार्टिंग में आपको रूल पढ़ हो सकता है कि आपको रेफरेंस के लिए रूल चाहिए साइड में, तो कोई बात नहीं, जब आप सॉल्व करें तो बुक में देख लीजिए, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू अवर रूल्स यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो अब कैलकुलेटर में इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो मेरा आंसर आ रहा है 3.125। तो 3.125 का सिग्निफिकेंट फिगर 4 है। अब रूल क्या है, ठीक है, फाइनल आंसर मस्ट बी द मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर, जो फिगर आप मल्टीप्लाई करते हो ये 2, उसमें किसके पास मिनिमम है? तो कि 2.5 के पास। तो वही आंसर, यहाँ जो आंसर है वो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर के इक्वल होना चाहिए। रूल पढ़ लो उसका। द आंसर हैज टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स इक्वल टू द डिजिट हैविंग मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर। तो मैंने यहाँ गिना है, ठीक है, 2.5 में 2 है, 1.25 में 3 है, तो ये मिनिमम है,
ये मिनिमम है। तो फाइनल आंसर मेरा आ रहा है 3.125। तो यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो ये आंसर सही नहीं है। मेरा आंसर आ रहा है जिस डिजिट के पास मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर है, तो मुझे राउंड ऑफ करना है, तो मुझे ये 2 और 5 दोनों निकालने पड़ेंगे और आंसर आएगा मेरा 3.1। अब यहाँ भी 2 और यहाँ भी सिग्निफिकेंट फिगर 2, ये आपको एडजस्ट ऐसे करना है। चलिए डिवीजन करते हैं। 1.25 का सिग्निफिकेंट फिगर 3 है, 2.5 का सिग्निफिकेंट फिगर 2 है, रूल वैसा ही है। अब मैं जब इसको डिवाइड करूंगा तो आंसर आएगा 0.05, है ना, 0.05। तो ये 0 कैलकुलेट नहीं करना है, ये दोनों कैलकुलेट करना है, तो ये आ गया सिग्निफिकेंट फिगर 2। तो ये जो है, अब ये 0.05 को मैंने साइंटिफिक नोटेशन में मुझे लिखना है, तो साइंटिफिक नोटेशन आएगा 5 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻²। ये साइंटिफिक नोटेशन नहीं है, डिजिट डेसिमल पॉइंट के पहले एक डिजिट चाहिए, तो 5 के बाद डेसिमल पॉइंट रखना है, बाद में 0, क्योंकि और कोई डिजिट तो है नहीं हमारे पास। तो 5.0 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻², ये हुआ सही साइंटिफिक नोटेशन 5.0। अब 5.0 का सिग्निफिकेंट फिगर 2 है। लेकिन अगर आप ये जो कंसेप्ट है, ये मैं ब्रेस ब्रैकेट कर रहा हूँ, वहाँ नहीं जाना चाहते हो, तो फिर भी ये आपका जो ये आंसर है उसकी सिग्निफिकेंट फिगर 2 है। ठीक है, क्योंकि ये डिजिट जो है वो नहीं गिनी जाती है, लेफ्ट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट ये भी नहीं गिनी जाती। ठीक है, जितनी भी लेफ्ट साइड है 0.05, ये 2 नहीं है, सॉरी मैंने गलती कर दी यहाँ पे, ये 0.05, ये रूल देखिए, रिफर कर लीजिए। ठीक है, 0 पॉइंट, ये देखिए ये रहा 0 पॉइंट, रूल नंबर 2। ठीक है, 0.00, ये कोई भी डिजिट 0 कंसिडर नहीं होगा, तो सिग्निफिकेंट फिगर 1 है। तो ये जो आंसर था हमारा, जहाँ पे हमने डिवीज़न किया, ठीक है, यहाँ पे मैंने ये गिन लिया है 0, प्लीज़, ठीक है, सॉरी फॉर दैट। तो ये दोनों 0 नहीं, यहाँ पे 1 सिग्निफिकेंट डिजिट आएगी, लेकिन सिग्निफिकेंट मिनिमम कितनी है, 2, तो 2 में कन्वर्ट करना है। हाउ कैन वी कन्वर्ट इन 2? तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 0.050, तो ये तो 0 राइट साइड का होगा, तो 0.050 ऐसा करके। अगर ऐसा नहीं करना चाहते हो तो मैं दूसरा मेथड आपको बना, इसको ऐसे कर दीजिए, 0.050 हो गया। अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में करिए, तो मुझे 1 और ये 2 डिजिट यहाँ पे ले जाना है, तो होगा 5.0 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻², क्योंकि मैं किस साइड गया, राइट साइड डिक्रीजेस, LIRD रूल। तो 5.0 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻², तो यहाँ पे भी ये सिग्निफिकेंट फिगर 2 है। अब यहाँ तक जाते हो तो भी सही हो, साइंटिफिक नोटेशन लिखते हो तो भी सही हो। ठीक है, यहाँ तक जाओगे इसका मतलब आप एक्यूरेट हो, यहाँ तक आओगे तो आप एक्यूरेट इतने नहीं हो। ठीक है, ये गलत नहीं है, सही है, लेकिन ये साइंटिफिक नोटेशन नहीं है ना, इसलिए। अब मैंने कुछ होमवर्क आपके लिए यहाँ पे नोट किया है, देखिए क्या, एक्सप्रेस इन साइंटिफिक नोटेशन, ये डिजिट, ये वाला, ये एग्जाम्पल मैंने हमारी एक्सरसाइज से लिया है, आप सोल्व करिएगा। ठीक है, ऑनलाइन ये इसके जो सॉल्यूशन है वो आप डाउनलोड भी कर सकते हो, और बाद में मैं आपको इसका सॉल्यूशन भेजूंगा। ठीक है, सोल्व पहले करिए, बाद में हम देखेंगे कि आपको कितना समझ में आया है। और दूसरा मैंने क्वेश्चन रखा है, वो भी हमारा टेक्स्ट बुक का ही है, और दैट इज़ क्वेश्चन द हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स। आप रूल पढ़ लीजिए 1 to 5। ठीक है, इसमें कितनी सिग्निफिकेंट है, 208, 5005, 126,000, 500.0 एंड 2.0034। ये 6 वो भी हमारी टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज में है। अब जब भी आंसर आता है सिग्निफिकेंट फिगर का, एडिशन सब्ट्रैक्शन हो या मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हो,
एक बार याद करिए, एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या रूल लगाते हैं हम? सब डिजिट को देखते हैं, जो डिजिट है उसके पीछे मिनिमम डिजिट है वो आंसर में भी डेसिमल पॉइंट के पीछे। जैसे कि यहाँ पे देखिए, अगर मैं जो बोल रहा हूँ आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वो देख लीजिए। यहाँ पे मेरा आंसर आ रहा है 31.122, लेकिन ये जो है ऐसी फिगर है जिसका आफ्टर डेसिमल पॉइंट एक डिजिट है, तो मेरा फाइनल आंसर इसके साथ मैच होना चाहिए, इसलिए मुझे राउंड ऑफ करना होगा 31.1। ठीक है। जैसे कि डिवीज़न में आपको ये देखना है कि मेरा फाइनल आंसर उसका जो सिग्निफिकेंट फिगर है, वो जो डिजिट हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसमें जिसके पास मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर है, ऐसा आंसर आना चाहिए। तो यहाँ पे मेरे पास आंसर में आ रही थी 4 सिग्निफिकेंट, तो मैंने ये दोनों निकाल दिए और इसमें 2 सिग्निफिकेंट आ गए। ये भी मैंने समझाया। ये डिवीज़न में भी सेम रूल फॉलो करना है। आपका जो ये आंसर है एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है तो ये गलत है, मिनिमम है 2। ठीक है, तो 2 में कन्वर्ट करने के लिए मैंने यहाँ 0 लगा दिया, फिर साइंटिफिक नोटेशन में चेंज किया 5.0 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻²। बाद में मैंने आपको 2 होमवर्क दिए। अब लास्ट टॉपिक पे मैं आ रहा हूँ कि आपको जब ये सॉल्व करते हो सिग्निफिकेंट फिगर, तो आपको फाइनल आंसर मिनिमाइज करना होता है। तो फाइनल आंसर जब आप मिनिमाइज करते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करते हो सिग्निफिकेंट फिगर का, ठीक है, तो उस फिगर को आपको राउंड ऑफ करना है। वो तो मैंने ऐसे ही रैंडम निकाल दिए, आपको सिर्फ समझाना था, लेकिन फिगर को राउंड ऑफ करने के भी रूल होते हैं। जैसे कि आप राउंड ऑफ करते हो, ये कोई नई बात नहीं है, आपको ऐसे ही कभी सेकेंडरी में किसी सर ने समझाया होगा कि जब भी आप राउंड ऑफ करते हो और जिस डिजिट को आप रिमूव करते हो ड्यूरिंग राउंड ऑफ, इफ द राइट मोस्ट डिजिट टू बी रिमूव्ड इज ग्रेटर देन 5, देन उसके प्रीसीडिंग जो नंबर है उसको आप में ऐड करना है। जैसे कि ये देखिए 1.386, ठीक है, मुझे ये 6 रिमूव करने हैं, तो दिस 6 इज ग्रेटर देन 5, तो आगे वाले जो डिजिट है 8 उसमें एक ऐड कर दीजिए 1.39। चलिए दूसरा देखते हैं, ये 52.87 है। अब देखिए मुझे ये 7 रिमूव करना है राउंड ऑफ करने के लिए, तो 7 इज ग्रेटर देन 5, तो आगे वाली जो डिजिट है उसमें एक ऐड कर दीजिए, तो मेरा आंसर आएगा 52.9। रूल फॉलो करना है आपको। चलिए, द डिजिट टू बी रिमूव्ड, राइट मोस्ट डिजिट फॉर राउंडिंग ऑफ, ठीक है। ये क्वेश्चन भी समझ लीजिए, एज ए क्वेश्चन नहीं आता है, ये रूल आपको याद करने, ये दीज आर द टूल्स टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। एग्जाम में तो कभी ऐसा आपको पूछेंगे ही नहीं कि चलिए राउंड ऑफ के रूल बताइए, चलिए सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल बताइए, ठीक है, बिल्कुल नहीं। चलिए एक्यूरेसी एंड प्रिसिजन के बारे में बताइए, ये आपको डिसाइड करना है। मैं ऐसा एग्जांपल दूं कि एक स्टूडेंट है, वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, उसके सब वैल्यू ट्रू आ रही है, उसका मतलब कि वो एक्यूरेट है। और दूसरा स्टूडेंट है, उसकी सब वैल्यू कांस्टेंट आ रही है, वो पहली बार भी कांस्टेंट ला रहा है, दूसरी बार भी कांस्टेंट, लेकिन वो सही नहीं है, उसका मतलब कि वो प्रिसाइज है। ऐसे आपको आइडेंटिफाई करना है। चलिए दूसरा रूल देखते हैं। मैं फिर से वही बात समझाने में लग गया, ठीक है। तो अगर आपको जो डिजिट रिमूव करनी है वो लेस देन 5 है, तब आपको कुछ चेंज नहीं करना है, सीधी डिजिट निकाल देनी, ठीक है, नो चेंज्ड। अगर मेरे पास ये डिजिट है और उससे मुझे राउंड ऑफ करना है 3 सिग्निफिकेंट तक, ये टोटल 4 है, तो आपको हर बार राउंड ऑफ में लास्ट डिजिट ही, राइट मोस्ट डिजिट ही निकालनी है, ठीक है। तो अगर ये मैं 4 निकाल दिया, ठीक है, तो 4 जो है वो लेस देन 5 है, तो कुछ नहीं करना है, ऐसे ही लिख दो 4.33। और साहब वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड द थर्ड, जिसमें गलती होने के बहुत चांस है, दिल थाम के बैठिए। If the rightmost digit to be removed is equal to 5, अगर 5 है, ना तो 5 से बड़ी ना तो 5 से छोटी, not greater than 5 not less than 5, तब क्या करेंगे हम, सोचिए। अगर आप 5 को रिमूव करते हो, ये 5, और उसके आगे वाली डिजिट प्रीसीडिंग डिजिट इज इवन,
अगर इवन नंबर है तो आपको कोई चेंज नहीं करना है। जैसे कि ये 6.25 है और मुझे राउंड ऑफ करना है 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक, तो मुझे ये 5 निकालते वक्त देखना है कि आगे इवन है कि ऑड है। इवन है 2, तो कोई चेंज नहीं करना है, ऐसे ही लिख लो 6.2। अगर प्रीसीडिंग नंबर इज ऑड, अगर प्रीसीडिंग नंबर ऑड है तो फिर एक ऐड करना है ना। बहुत गलती करते हैं इसमें आप। आगे वाला तो ठीक है, चलिए 5 से ज़्यादा है तो एक ऐड कर दो आगे वाले में, 5 से कम है तो कुछ मत करो, निकाल दो, ठीक है। लेकिन 5 है तब क्या करना है बच्चे, इवन है तो भी एक ऐड कर देते हैं, ऐसा नहीं करना है बेटे। क्या करना है, अब यहाँ पे 5 निकालोगे और बाद में देखोगे कि यहाँ पे 3 है, वो ओड है, तो एक ऐड करना है 6.4, ठीक है। यहाँ पे भी बच्चे 6.3 कर देते हैं कभी, तो ये गलत हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको, मेरे पास थोड़ी जगह नहीं है इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ, लेकिन आपके पास टेक्स्ट बुक है तो राउंड ऑफ के और कुछ आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स के और क्वेश्चंस है, तो यहाँ पे आप एक्सरसाइज का 1.20 एंड 1.31 भी सोल्व करो। आगे जो मैंने क्वेश्चन लिखे हैं वो एक्सरसाइज से ही लिखे हैं। अगर उसमें समझ में नहीं आता है तो मेरा कांटेक्ट करो, या तो आपके पास रेफरेंस बुक है, देख लो कहाँ पे गलती की आपने ये भी, और ये एक बार फिर से आराम से पढ़ लो। और इसके बाद मुझे आपके साथ डिस्कस करना है, और वो है एटॉमिक मास। अब हम धीरे धीरे केमिस्ट्री में एंटर हो रहे हैं। फिर से एक बार आपको याद दिला दूँ, आज का भी जो मैंने कंटेंट आपके साथ डिस्कस किया ना, वो कोई भी कंटेंट जो है वो प्योर केमिस्ट्री का नहीं है। केमिस्ट्री तो हमारी बुक में चालू होती है लॉज से, लॉज ऑफ कांस्टेंट और एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, ये सब आता है तब केमिस्ट्री स्टार्ट होती है। अभी तो मैं आपको राउंड ऑफ समझा रहा हूँ, और ये कोई भी चीज़ कम्पिटिटिव में आती नहीं है, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। ठीक से देखो, ध्यान से इसको समझने की कोशिश करो। जो होमवर्क मैंने दिया है वो भी करो, इसको फेयर नोट में लिख लो। कभी भी जब भी राउंड ऑफ करना हो, या तो सिग्निफिकेंट फिगर डिसाइड करनी हो, साइंटिफिक नोटेशन डिसाइड करनी हो, एक्यूरेसी प्रिसिजन आपको डिसाइड करना हो, तो काम आ सकता है। ये फिजिक्स में भी रिपीट होगा, ठीक है। तो यहाँ जो मैंने समझाया वो सपोर्टिव होगा, क्योंकि उसमें फिजिक्स का ये टॉपिक है तो उसमें डिटेल में भी हो सकता है। हमारा इतना है तो हम इतना ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।